So hello everyone, let's start today's class. I hope you are fine. So we all were trying to solve our exercise 4.1 that was based on quadratic polynomial. There we all had seen how can we factorize with the help of our prime factor methods, our polynomials. So let us see what are the remaining questions which we have to solve today. So we all were trying to solve the questions from exercise 4.1 type 1. So in type 1, let us see which are the questions which we have to solve today. Now currently I am taking question number 6 part 1. Question number 6 part 1. This is given that a upon x minus a plus b upon x minus b equal to 2c upon x minus c. Here we have to factorize this equation. So let's solve this. On the left hand side, we have here a number, and on the right hand side, we have here other expression. So when we are taking here LCM, we can say that LCM is x minus a, x minus b, and then this multiply here a x minus b or plus b x minus a equal to 2c upon x minus c. First we have to solve this and make it as a standard form. So when we are solving left hand side of numerator, so we can get here ax minus ab and plus bx minus ab whole upon x minus a or x minus b equal to 2c upon x minus c. Achha, we have to form this equation in the standard form. So I am going to multiply denominator also. Denominator को multiply कर देते हैं. So x into x, we can write here x square minus xb minus ax minus plus ab. This is the left hand side. Let us solve this. On the left hand side numerator, we have here ax. This is minus ab or minus ab. We can write it minus ka 2ab. Similarly, this is plus bx upon, here we have x square minus xb minus ax or plus ab. This is equal to 2c upon x minus c. So cross multiply here. So after cross multiplication, we can write our equation in this manner. X minus c को multiply करें इस वाले numerator से. So हम direct multiply कर दे रहे हैं. Ax is multiplied by x, so we can write here ax square minus ax is multiplied by minus c. So we can say that this is minus का acx. Then minus 2ab is multiplied by x minus c, so we can write here minus 2abx. Then minus minus plus 2abc. Now plus bx is multiplied by x minus c, so we can write here plus bx square. Now plus bx multiplied by minus c, so we can write here plus minus minus bcx. Okay, this is equal to, now when here denominator of left hand side is multiplied to numerator by right hand side, so this 2c is multiplied by x square, so we can write here 2c x square, then minus 2bcx minus 2acx, or we have here plus 2abc. Okay, so after multiplication we are getting this type of equation. So let us solve this furthermore. Now हम क्या करेंगे, x स्क्वायर वाले टर्म एक साथ राइट करेंगे.
ठीक है। सो कहाँ कहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, बस। सो इट मीन्स ए प्लस बी, अब ये 2c x square, this is written on the right hand side, so I am going to transposing this on the left hand side, so we can write here minus 2c x square, ठीक है। अब x वाले टर्म एक साथ राइट कर लें। x वाले टर्म कौन कौन से हैं, ये हम लोग के पास हैं माइनस ac(x) और माइनस 2ab(x), माइनस bc(x), माइनस 2bc(x), माइनस 2ac(x), और तो कहीं है नहीं, सो लेट अस राइट हियर प्लस, इधर क्या आएगा माइनस का ac ये वाला, माइनस का 2ab और माइनस का bc, अब इधर वाला माइनस 2bc, इसको हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो वी कैन राइट हियर प्लस 2bc माइनस 2ac है तो इसको भी ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो प्लस का 2ac और x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। नाउ लेट अस राइट हियर प्योर कांस्टेंट टर्म, सो प्योर कांस्टेंट टर्म इज प्लस का 2abc, सो प्लस का 2abc, और ऑन दिस साइड वी हैव हियर plus का 2abc right hand side, so I'm going to transpose this on the left hand side, so we can write minus का 2abc equal to 0. So now solve this. अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान से देखने पे कुछ ना कुछ लगेगा, इसमें आपके पास चीजें ऐसी हैं जो और आगे सॉल्व होंगी, आइडिया सब्ट्रैक्ट होंगी। सो इफ वी आर सीइंग हियर आर प्योर कांस्टेंट टर्म, अगर हम लोग यहाँ प्योर कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं तो देखिए एक प्लस का 2abc है, देखिए माइनस का 2abc है, तो ये कट करके ये वाला पार्ट 0 हो गया। नाउ लेट अस राइट दिस इन अनदर मैनर, सो the term of x square is here we have a plus b minus 2c x square, now then plus ac, ये माइनस का ac है और ये प्लस का 2ac, so when we solve this we can write is प्लस का ac। यहाँ पे देखें माइनस का 2ab है और यहाँ तो और कहीं है नहीं, ठीक है, माइनस का 2ab, ठीक है, ये माइनस का bc है और ये प्लस का 2bc, तो क्या बनेगा प्लस का bc, ठीक है, ये हम लोग का बन गया प्लस का bc। तो नाउ वी कैन राइट हियर x एज अ कॉमन इक्वल टू 0, ये प्लस 2abc और माइनस 2abc ये तो कैंसिल हो गया है, कट के 0 हो गया है। नाउ वी अगेन टेक हियर कॉमन one thing, that is x, देखिए in both terms we can take here common x, हम यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, so let us take here x common, when we are taking x common so we can write first term as a plus b minus 2c, और यहाँ पे एक x बच जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म को जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी ac माइनस 2ab प्लस का bc, ठीक है, currently we have taken x common, so equal to 0, बस। now we have taken here x common, now here we have to just only put our values there, और जो factors हैं factors को 0 के इक्वल कर दें, then we can find our answer there, so let us find our answer। So here we have two factors, यहाँ पे देख करके 2 factors लग रहे हैं, ठीक, एक तो बस ऐसे अगर हम लोग को प्राइम फैक्टर ही फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने, तो अब ये फैक्टर अपने आप आ चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर ये आपका x हो गया, सेकेंड फैक्टर जो ये ब्रैकेट के अंदर बड़ा सा रिटर्न है, ठीक, आप ऐसे राइट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके जीरोस फाइंड करने होते, रूट्स फाइंड करने होते तो भी आप लोग इसको फाइंड कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग को इस टाइम सिर्फ फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, तो फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा चलिए जीरोस फाइंड करते हैं, लेट अस फाइंड जीरोस। सो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग
जो भी फैक्टर्स हैं उसको 0 के इक्वल कर दें। सो फर्स्ट फैक्टर हम लोग का है x, therefore zeros क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया। सेकेंड फैक्टर हम लोग का है दैट इज a प्लस b माइनस 2c x एंड प्लस ac माइनस 2ab और प्लस का bc इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम क्या करें, a प्लस बी माइनस 2c, ये जो x है इसको यहीं पर रख रहे हैं ये वाला टर्म, और ये वाला इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे दिस साइड। सो इट विल बिकम टोटली माइनस में ac माइनस 2ab और प्लस का bc। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस का माइनस, ये अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वी कैन राइट हियर माइनस का ac प्लस का 2ab और माइनस का bc अपॉन x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है ये आएगा इधर राइट हैंड साइड। सो वी कैन डिवाइड इट हियर, वी कैन राइट हियर a प्लस b माइनस 2c। तो x की वैल्यू ये आ रही है। अगर आगे और कुछ सॉल्व होने वाला है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ x की वैल्यू इतना राइट करके you can say that this is your solution of this equation. So in this way we all had find our values of x. So these are the answer. X की यहाँ here we have two values, x equal to 0 and second x equal to minus ac plus 2ab minus bc whole upon a plus b minus 2c. So let us start our second question. Next question. It was our exercise. So I think our exercise is this one. Let us solve question number 5 third. So इसको भी फटाक से solve करते हैं। So I am going to erase this one. Question number 5 third. Question number 5 third is, here we have x minus 1 upon x minus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 equal to 10 by 3. This is given that x cannot be equal to 2 and x cannot be equal to 4. So I told you that when this type of value is given, so it means that कि ये वैल्यूज x की छोड़ करके बाकी और वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, बस आप लोग इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग सॉल्व बाय योरसेल्फ। बस ध्यान रखना है कि इसमें x की जिन वैल्यूज को कहा गया है कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो उन वैल्यूज को आपको नहीं राइट करनी है। उसके अलावा बाकी जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपको x की आनी चाहिए। So now let us solve question number 4 second. So I am going to write question number 4 part 2. This is given in the form of x square plus a plus a upon a plus b plus a plus b upon a x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही गिवन है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म? हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर quadratic polynomial. So here we see that
on the place of capital A the coefficient is 1, on the place of capital B the coefficient is this one which is written in bracket, then x plus pure constant term is 1 here. तो हम लोग ने जो अभी तक वन मेथड सीखा है उसमें ये सीखा है कि जो भी ये बीच वाला टर्म है इसको हम लोग को ऐसे करना है या फिर इसको ऐसे दो पार्ट में करना है कि जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यूज आ जाए यहाँ प्योर कांस्टेंट वाली, और इधर जो प्योर और जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दोनों मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू है, तो देखिए 1 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इट मीन्स उस 1 को हम लोग को ऐसे अलग अलग फैक्टर करने हैं जिससे बीच वाली वैल्यू आ जाए। तो देखिए अगर हम 1 को ये राइट करें a अपॉन a प्लस बी और इंटू a प्लस बी अपॉन ए, तो सॉल्व करने पे वैल्यू हम लोग की 1 ही आएगी। इस तरीके से a अपॉन a प्लस बी और इंटू a प्लस बी अपॉन a, तो वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही, 1 ही आ रही है। ये से ये कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, ठीक है। इट मीन्स दैट हम लोग ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि वो ऑलरेडी इसमें गिवन है। सो बस आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ एक्सपैंड करके वैल्यूज फाइंड करनी है। यू कैन टेक हियर इन दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस, क्या कीजिए इस x को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a x plus 1 equal to 0. So let us take here common x. So we get here x plus a upon a plus b plus, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या है a प्लस बी अपॉन a, यहाँ पे ये x है और प्लस 1 इक्वल टू 0। Now solve this x, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितनी वैल्यू आएगी। तो a प्लस बी एलसीएम है, नाउ x इज मल्टीप्लाइड हियर, तो वी कैन राइट हियर a प्लस बी ऐसे x और प्लस का a, नाउ प्लस here LCM is a, so we can write here a plus b x और प्लस का a equal to 0। now you can take again LCM, आप फिर से इसमें LCM ले सकते हैं, ठीक है। तो जब LCM लेंगे तो इन डिनोमिनेटर हियर इज a प्लस 1 और यहाँ पे a है, तो पूरा होल अपॉन में LCM आएगा a और ये a प्लस बी। अभी जो a वाला टर्म है, a वाला ये डिनोमिनेटर में इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो वी कैन राइट हियर a x और इन ब्रैकेट वी कैन राइट a प्लस बी x प्लस a, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, अब दूसरा क्या है a प्लस बी, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इन ब्रैकेट वी कैन राइट a प्लस बी एक्स और प्लस a इक्वल टू 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर इधर आएगा 0 के साथ तो पूरा 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर a एक्स इन ब्रैकेट, हियर वी कैन राइट a प्लस बी एक्स और प्लस का a। Now second term we can write as plus a plus b and next is that is a plus b x और plus का a, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। नाउ सी केयरफुली, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो आपको देखने पे क्या लगेगा कि a प्लस बी एक्स और प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस a, दिस फैक्टर इज ऑल्सो कॉमन, ये फैक्टर फिर से कॉमन है। सो लेट अस टेक कॉमन हियर, सो व्हेन वी आर राइटिंग a प्लस बी एक्स प्लस का a, व्हेन वी आर टेकिंग इट कॉमन, तो हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बच जाएगा अंदर
ये ax वाला बचेगा पार्ट ax, यहाँ से ये पूरा चला गया कॉमन, और प्लस का a प्लस b बचेगा, प्लस का a प्लस b बचेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सो बस सिंपल सा। अब क्या करेंगे, वी हैव टू सॉल्व दिस, तो इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट फैक्टर विल बी a प्लस b x प्लस a इक्वल टू 0। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो आफ्टर सॉल्यूशन वी कैन फाइंड हियर वैल्यू ऑफ x, ये ऐसे a प्लस b x is when we are transposing a on the right hand side, we can write is minus a. So x equal to minus a upon a plus b. This is the first value of x. Now let us transpose our second term, okay, second factor. So second factor is here we have ax plus a plus b. So a plus b equal to 0. So we can write ax equal to minus का a plus b. So x equal to minus का a plus b upon a. So this is the second value of x. इस तरीके से हम लोग के दोनों x की वैल्यूज आ गई हैं। सो इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए और देखते रहिए क्या कॉमन आ रहा है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल हैव टू कंप्लीट टाइप 1। टाइप 1 जो भी था, आप सभी को ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। Then in next day we all will try to learn our different method to solve our factorization. So I hope that